Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all are fine. We are on chapter 14, that is Environmental Chemistry 1, and it is about the atmosphere. The topic for today's lecture is the air pollutants. So before moving towards the main topic, let's first discuss about the pollution. We know that pollution is one of the biggest problems on the planet and the most dangerous as it destroys the earth and its original nature. And it also ends up destroying ourselves at the end. You must have read about the pollution in your previous classes. So, the simplest definition of the pollution is that when harmful substances contaminate the environment, then it is called as the pollution. So this means that these harmful substances are reducing the purity of our environment. And whenever any substance will decrease the purity of that environment or will impure the environment, then we will consider it as a pollution. Pollution refers to the very bad condition of the environment in terms of quantity and the quality. These are the four main forms of the pollution, and those are air pollution, land pollution, noise pollution, and the water pollution. So, since our topic for today is about the air pollutants, so we will limit ourselves to the one form of pollution, that is the air pollution. But before discussing about the air pollutants or air pollutions, we need first to define that what are the pollutants. That is in the air, water or soil which has a harmful effect on some part of the environment. So these are the areas where these substances may be present. They may be present in the air, water or in the soil. And whenever they are present, they always cause harmful effects on the living organisms present in that area of the environment. So this is the definition of the pollutants. How these pollutants are produced? They may be produced by the human activity, or there are some natural processes that are also responsible for the production of the pollutants. And the effect of the pollutants is that they damages the environment, health and the quality of the life. So here I have mentioned some of the pollutants that are having the harmful effect on the environment. And first category from which the pollutants are usually introduced in the environment is from the industrial waste. In this diagram you may see that here a certain kind of liquid is being released from the pipes, and that pipes probably came from some kind of industry. अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो लिक्विड है ये कॉन्स्टेंटली जो है ये एक्वाटिक जो आपका वहाँ पर इन्वायरमेंट है या जो वाटर है, रिवर है, स्ट्रीम है, उसको ये कॉन्स्टेंटली जो है कंटेमिनेट कर रहा है. तो इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे. इसी तरह यू कैन सी हेयर यहाँ पर डंप किए गए इंडस्ट्रियल एज वेल एज द फूड वेस्ट, और यहाँ पर जो कि मौजूद बिल्डोज़र है ये इनको बरी कर देगा इनटू द लैंड, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द लैंड पोल्यूशन. Similarly, these insecticides, herbicides or pesticides, they are also responsible for the land pollution. इनके हमें फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें डिफरेंट जो हैं वो ऑब्जर्व होते हैं. So they are also considered as the pollutants because they also have some harmful effects. And some other kinds of pollutants are mentioned here. Particulates of dust and smokes. Particulates means that the small particles of these dust and smoke are also considered as pollutants. अब डस्ट और स्मोक में डिफरेंस क्या है कि डस्ट जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ ड्राई पार्टिकल्स, लेकिन स्मोक जो है ये मोस्टली रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, और इसमें आपके पास ड्राई पार्टिकल्स भी होते हैं एंड सम वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट विद इन दी स्मोक. लेकिन जो डस्ट होती है इट ओनली कंटेन्स द ड्राई पार्टिकल्स. सो दीज डस्ट एंड स्मोक आर आल्सो कंसिडर्ड एज द pollutants. Similarly, this carbon monoxide, it is a gas, it is also a pollutant. Nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozone, and those paints which contain lead,
दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन, क्योंकि जब ये लेड रिलीज होती है इनटू द एटमोसफेयर तो ये एज अ पोल्यूटेंट काम करती है. So let's discuss these pollutants one by one. So first pollutant is that of the sulfur oxides. अब यहाँ पर आप देखें कि सल्फ़र ऑक्साइड्स के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किया वो यूज़ किया SOX. ठीक है, ये जो हमने फार्मूला यूज़ किया जनरलाइज करने के लिए. तो कौन से जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं दैट आर कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट्स, दैट आर सल्फ़र डाइऑक्साइड एज वेल एज दी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड. सो इन दोनों को जनरलाइज करने के लिए यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया गया है SOX. हेयर X में बी 2 एज इन सल्फ़र डाइऑक्साइड और X में बी 3 एज इन सल्फ़र ट्राइऑक्साइड. Now let's first discuss about the sulfur dioxide. This sulfur dioxide is a corrosive gas that comes primarily from the combustion of coal and oil. जब भी coal and oil को burn किया जाएगा तो it will result in the production of this sulfur dioxide gas. अभी जो sulfur dioxide gas है it is a colorless gas और इसकी बहुत आप कह लें कि unpleasant और irritating odor है. तो if you are asked about the physical properties of the sulfur dioxide, you will say that it is a colorless gas, ठीक है, and it has a very unpleasant and irritating odor. इस जो सल्फर डाइऑक्साइड इट इज़ अ रिस्पायरेटरी इरिटेंट. ठीक है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं ये उनको बढ़ाता है. अगर आप पहले ही डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में मुब्तला हैं तो ये उनके सिम्टम्स को बढ़ाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. इसके अलावा ये किस तरह रिलीज़ होती हैं? इट इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस एंड द फॉरेस्ट फायर्स. सो जब भी आप कोई पॉल्यूटेंट अभी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आप ये बताएंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, उसका कलर क्या है, वो किस फेस में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए अभी हमने अभी डिस्कस किया कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है इट इज़ गैस. इसी तरह ये इसका जो ऑर्डर है वो बहुत अनप्लेजेंट है एंड इट इज़ एन इरिटेटिंग ऑर्डर और ये कलरलेस गैस है. तो ये आगे सल्फर डाइऑक्साइड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़. नाउ इफ़ यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कि सल्फर डाइऑक्साइड बनती कैसे है, दैन यू विल से कि इट मोस्टली इज़ रिलीज फ्राम बर्निंग ऑफ द फॉसल्स फ्यूल. वो फॉसल्स फ्यूल पावर स्टेशन में भी बर्न हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी बर्न हो सकते हैं. ठीक है, उनकी बर्निंग के दौरान ये रिलीज़ होगी. फिर आ जाती है थर्ड कैटेगरी किसी भी पोल्यूटर्स को डिस्कस करने के लिए, वो होती है अफेक्ट्स, कि उनके अफेक्ट्स क्या होते हैं. तो अफेक्ट हमने अभी एक पढ़ा कि इट इज़ अ रिस्पायरेटरी इरिटेंट एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट सम अदर अफेक्ट्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड. But before moving towards the effects of sulfur dioxide, we will first discuss that how this sulfur dioxide is responsible for the formation of sulfur trioxide. अब इस इक्वेशन में आप देखें कि when sulfur dioxide reacts with oxygen it forms sulfur trioxide और ये sulfur trioxide दोबारा वाटर के साथ मिलकर क्या बना के देगी, सल्फ्यूरिक एसिड. सो इस इक्वेशन को जहन में रख के you can recall कि these two oxides, sulfur dioxide and sulfur trioxides, are responsible for the acid rain as well. We have read about the acid rain in our previous lectures and we know that they have a very harmful effect on the trees and the aquatic life. इसी तरह जो buildings हैं या statues हैं उनकी withering में भी जो है ये बहुत important role play करते हैं. So that acid rain is produced because of the oxides of the sulfur that are the sulfur dioxide and the sulfur trioxide. अब हम स्टडी कर रहे हैं सल्फ़र ऑक्साइड्स के अफेक्ट्स के ऊपर कि इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं. तो फर्स्ट इफेक्ट इज़ दैट इट इज़ अ रिस्पायरेटरी इरिटेंट एंड इट एग्रवेट्स द सिम्टम्स ऑफ द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स. एग्रवेट्स का मतलब है कि ये जो आपके सिम्टम्स हैं किसी भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के उनको बढ़ा देगा. अब वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कौन से हैं? इट मे बी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा और देयर मे बी अनदर लंग्स डिजीज़. तो जो उनके ऑलरेडी मौजूद सिम्टम्स हैं वो उनको मज़ीद बढ़ा देगा अगर वो जो पेशेंट है इफ़ दैट पेशेंट इज़ एक्सपोज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड और द सल्फर ट्राइऑक्साइड. Now let's discuss about another pollutant, that is the carbon monoxide and the carbon dioxide. अब सेकंड कैटेगरी जो है वो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के ऊपर और जो दो मेन ऑक्साइड्स हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो पोटेंशियल सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जब भी कभी फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है
इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर मोस्टली जो हमारे पास गैस रिलीज होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है. दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस. ठीक है, ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडेक एंड डिजीनेस. डिजीनेस का मतलब है कि आपको मतलब चक्कर आते हैं और यू फील इम्बैलेंस और विजन थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. तो दैट कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. और जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, देन इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ. वी नो, और आपने बायोलॉजी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि देयर इज़ अ मॉलिक्यूल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन के ऊपर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ पर जाकर ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि उस एरिया में जहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होता है उसको जो है वो रीप्लेस कर देता है, ब्लॉक कर देता है. और ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती और हमारी बॉडी के डिफरेंट एरियाज तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती. उस वजह से दिस गैस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. Now how these oxides are produced? जब कार्बन को रिएक्ट करवाया जाता है in a limited supply of oxygen, it forms carbon monoxide. But when this carbon reacts with oxygen in the excess supply, then it results in the formation of the carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूटेंट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके कन्वर्ट करती हैं इनटू द ग्लूकोज. लेकिन this carbon dioxide can be considered as pollutant with respect to this process which is called as global warming. हम global warming को इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, दैट ट्रैप्स द हीट. ठीक है, और जब वो हीट ट्रैप करती हैं तो उस वजह से जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एरिया है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, गर्मी हो जाती है. तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं. तो उन गैसेस में जो कि हीट ट्रैप करती हैं उन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है. जो चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड एज सच पॉल्यूटेंट कंसिडर नहीं कर सकती, बट चूंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनती है इस वजह से वी कैन कंसिडर इट एज दी पॉल्यूटेड. अगर इसकी अमाउंट एक ख़ास एरिया में एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये इतनी अमाउंट में हीट ट्रैप करती है कि वहाँ पर अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है. Now this nitrogen oxide, these nitrogen oxides are also the pollutants. ठीक है, the most important oxides of the nitrogen that are considered pollutants are the nitric oxide and the nitrogen dioxide. अब यहाँ पर जो X है अगर 1 है तो we will have nitric oxide, और अगर यहाँ पर X2 है we will have the nitrogen dioxide. अब first we will discuss the physical characteristics of the nitric oxide. Nitric oxide जो है वो colorless है and it is an odorless gas and it is heavier than air and sparingly soluble in water. Sparingly soluble का मतलब कुछ amount में ये soluble होती है. But if we talk about the physical properties of nitrogen dioxide, then this nitrogen dioxide is reddish brown gas और इसकी बहुत pungent odor, बहुत तेज़ जो है वो smell होती है इसकी. एंड इट डिजॉल्व रेडली. नाइट्रिक ऑक्साइड के मुकाबले में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है. सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. सबसे पहले क्या है कि डैमेजेस द लंग, इट कॉजेज हेडेक एंड ऑल्सो द कफ. अब बात आती है कि इसके सोर्सेज क्या हैं. तो मोस्टली दे आर रिलीज फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स, पावर स्टेशंस एंड इंडस्ट्रीज़. जिन जिन एरियाज़ में फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहे हैं उन एरियाज़ में जब उनको फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाएगा तो दैट बर्निंग विल प्रोड्यूस द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैनली. Another pollutant is that of methane, and the formula for methane is CH4. It is produced, we are discussing
the source of the methane here. It is produced when the dead plant material decays in the absence of air. अब जब कोई भी plant material उसकी decaying हो रही होती है एनएरोबिक इन्वायरमेंट में इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहाँ पर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस डिकेइंग प्रोसेस के दौरान जो है वो मीथेन रिलीज़ करते हैं. इसी तरह कुछ एरियाज जैसे मार्शेस, स्वैम्प्स एंड राइस पैडी फील्ड्स, इन तमाम एरियाज़ में भी जो है मीथेन बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. मार्शेस आर कंसिडर्ड एट दी वेटलैंड्स और मोस्टली इनके ऊपर जो है वो हर्बेशियस प्लांट्स ग्रो करते हैं इन लैंड्स के ऊपर. इसी तरह स्वैम्प्स दे आर प्रेजेंट इन दी फॉरेस्ट. दीज आर दी वेटलैंड्स विच आर प्रेजेंट इन दी फॉरेस्ट. अब यहाँ पर इसमें इन वेटलैंड्स पर ट्रीज़ भी होते हैं, इनमें हर्ब्स भी होते हैं. इसी तरह यू मे सी है दीज आर दी राइस पैडी फील्ड्स. अब यहाँ पर आप तमाम तीनों जगहों पे देखें कि वी हैव दी वेटलैंड्स और इन एरियाज़ में मोस्टली वो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. इन एरियाज़ में उन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए आइडियल कंडीशंस जो हैं वो मौजूद होती हैं और जब वो ग्रो करते हैं तो डिकेइंग के प्रोसेस में वो मीथेन रिलीज़ करते हैं इनटू द एनवायरनमेंट. इसी तरह दिस मीथेन इज़ when present in the air, तो photochemical reaction होता है. What is the photochemical reaction? It is a chemical reaction that takes place in the presence of the UV light. ठीक है, सन में मौजूद जो UV light है जो रिलीज़ हो रही होती है उसकी मौजूदगी में जो मीथेन है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डिफरेंट इरिटेटिंग एंड दी टॉक्सिक कंपाउंड्स एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट हीट एब्जॉर्बर. जिस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात की कि वो हीट ट्रैप करता है, इसी तरह मीथेन भी जो है वो हीट ट्रैप करता है. हीट ट्रैप करने की वजह से जिस एरिया में ये रिलीज़ हो रहा होता है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. सो दिस मीथेन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द मीथेन इन द environment. Now we have another category that is the chlorofluorocarbons, and you must have read about the chlorofluorocarbons in your previous lectures. These are also considered as pollutants. They are basically the group of unreactive compounds and they are widely used as the solvents. अब ये भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो ट्रैप्स हीट. तो फर्स्ट इफेक्ट इनका क्या आ गया कि ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं. दूसरा इफेक्ट क्या है कि दे कॉज स्किन एलर्जी as well as they also damages the liver, kidneys and the nervous system. इसके अलावा जो सबसे मेन इफेक्ट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हमें ऑब्जर्व होता है वो ये कि इट डैमेजेस द ओजोन लेयर. अब यहाँ पर आप देखिए दिस CFCl3 इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, दिस CFCs इज़ एब्रीविएटेड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अब उसकी एग्जाम्पल में आपके पास CFCl3 आ गया. यहाँ पर आप देखें कि क्लोरीन भी मौजूद है और फ्लोरीन भी मौजूद है अलॉन्ग विद द कार्बन. अब यूवी की मौजूदगी में, यूवी लाइट की मौजूदगी में ये CFCl3 डिकम्पोज हो जाता है इनटू CFCl2 एंड द क्लोरीन रेडिकल. अब ये जो रेडिकल्स हैं वी नो दैट दे आर वेरी रिएक्टिव. जब ये रेडिकल्स ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म O2 एंड ClO. ठीक, अब यहाँ पर आप देखें कि इसने ओजोन को ब्रेक करके उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू एन ऑक्सीजन. तो इस तरीके से जो ओजोन है उसकी अमाउंट कम होती जाती है और वहाँ पर वी कैन ऑब्जर्व द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर. अब वो डिप्लेशन किस वजह से, डिप्लेशन यानी जो कमी है वो किस वजह से आ रही है, वो बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विद द ओजोन लेयर. Then another pollutant is that of the lead compounds. अब mostly जो lead compounds का जो source है वो है combustion of leaded petrol और fuel. इंशाल्लाह इसमें आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जो पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसमें एक कंपाउंड यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड. अब वहाँ पर जो ये लेड इस कंपाउंड में जो मौजूद है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन रिलीज़ होता है इनटू द एनवायरनमेंट. इसी तरह जो लेड बेस्ड पैंट्स हैं जब उनको यूज़ किया जाता है तो उस यूज़ के दौरान भी ये पार्टिकल्स जो है ये रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द एयर. इसका अफेक्ट क्या है, इट अफेक्ट्स द ब्रेन डेवलपमेंट स्पेशली अमॉन्ग द चिल्ड्रन एंड इट कैन बी फैटल. ठीक है, ये कैन कॉज डेथ. अब इसकी
एक्सपोजर से क्या नुकसान होते हैं कि उन चिल्ड्रन के अंदर लोअर आईक्यू होता है, दे हैव द डिक्रीज्ड एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड दे मोस्टली गो थ्रू द अंडर परफॉर्मेंस एट द स्कूल। तो ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द lead compounds. Similarly, this ozone is another pollutant and it is harmful for us. अब वैसे अगर हम ओजोन को डिफाइन करें, वी विल से इट इज़ अ लाइट ब्लू गैस हैविंग एन अनप्लेजेंट ऑडर। अब ओजोन दो तरह की होती है, वी हैव अ गुड ओजोन एंड द बैड ओजोन। अगर ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, इट इज़ अ लेयर ऑफ एटमोसफेयर, तो वहाँ पर मौजूद जो ओजोन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड ओजोन, बिकॉज वो वहाँ पर जो मौजूद हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको अर्थ तक नहीं आने देती। लेकिन अगर ये ओजोन ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज बैड ओजोन, बिकॉज इसके हमें डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्व होंगे। The effects of the ozone, if it is present in the troposphere, is that it causes the breathing difficulties, it causes asthma as well as the eye irritation. Now we have discussed about the pollutants and now we will discuss that what are the sources of the air pollution, कि किस तरीके से ये pollutants जो है वो environment में introduce होते हैं। तो फर्स्ट सोर्स हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल सोर्स, यानी कुछ नेचुरल प्रोसेस हो रहे होते हैं जिनकी वजह से वो पोल्यूटर्स इन्वायरमेंट में आते हैं। उनमें फर्स्ट वन इज़ द फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल को जब आग लग जाती है तो वो जो बर्निंग ऑफ वुड है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर। इसी तरह डस्ट स्टॉर्म आपने देखे होंगे कि जो सहराई इलाके होते हैं उनमें जब स्टॉर्म होता है तो वो इस तरह का होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द डस्ट स्टॉर्म। इसी तरह जब वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं तो उनकी आतिशफशां फटने से ही जो डिफरेंट आपके जो डस्ट है और पॉइजनस गैसेज हैं अलॉन्ग विद ऐश, they are released into the air and these all are the pollutants and have different harmful effects on us. Similarly we have certain termites और कुछ animals ऐसे होते हैं जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं into the air और they also release some amount of methane as well. This methane is also a pollutant. इसी तरह कुछ इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस जो कि क्लाउड्स में हो रही होती हैं, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाती हैं ऑक्सीजन के साथ एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब ये भी पोल्यूटेंट्स हैं। ये कैसे बने? जब क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मौजूदगी में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाती है। सो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन। लेकिन मोस्टली जो पोल्यूशन कॉज हो रही है वो कॉज हो रही है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। सबसे जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। अब क्या होता है कि जब भी हम कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो उनके जो कंबस्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो मोस्टली ऐसे पोल्यूटेंट्स होंगे जो हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान देंगे। अब हाफ ऑफ द एयर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम द कार्स एंड द मोटर व्हीकल्स। इसी तरह जो फैक्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल और ऑयल को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करती हैं, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेज इन द एयर। अब देखिए जब बर्निंग होती है तो क्या होता है कि अगर कार्बन जो है जिस मैटर को बर्न किया जा रहा है उसमें यकीनन कार्बन कंटेंट भी होगा, वो कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द लिमिट टू सप्लाई टू फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह सल्फर विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस नाइट्रिक ऑक्साइड विल अगेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ये वो प्रोसेस है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। सेकेंड वी हैव जस्ट हैव रेड अबाउट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमने ये पढ़ा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये यूज़ होते हैं एज अ सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स।
फिर फ्रिजेस में रेफ्रिजरेटर्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं, इसी तरह एसीज़ में भी यूज़ होते हैं। और एरोसोल स्प्रेज जैसे आपके पास एयर फ्रेशनर हो गया या परफ्यूम्स हो गए, उनमें ये एज अ प्रोपेलेंट्स यूज़ होते हैं। प्रोपेलेंट्स का मतलब ये है कि इस जो चीज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनको लिक्विफाई किया जाता है, और जब हम परफ्यूम की नोज़ल या एयर फ्रेशनर की नोज़ल को प्रेस करते हैं तो ये जो लिक्विफाइड फ्लूइड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, ये उस नोज़ल से प्रेशर के साथ बाहर निकल के गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वहाँ उस परफ्यूम के अंदर मौजूद फ्रेगरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स खुशबू प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका वहाँ पर मौजूद होना सिर्फ ये काम करता है कि वो उन फ्रेगरेंट मॉलिक्यूल्स को परफ्यूम की बॉटल से बाहर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड करने का काम है इसका। जस्ट तो ये उस चीज़ को, इस वजह से हम इसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, कि ये जो फ्रेगरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्प्रेड करता है इनटू द एटमॉस्फेयर। नाउ दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ नॉट वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या यूज़ के दौरान या डिस्पोजल के दौरान जब ये रिलीज़ होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, तो हमने ये अभी चीज़ पढ़ी कि इट रिएक्ट्स विद द ओजोन एंड इट कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ दैट ओजोन। नाउ वी हैव रेड अबाउट द ओजोन एज वेल, कि ये भी एक एयर पोल्यूटेंट है। और ये कैसे बनता है कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जो है मतलब जो ऑक्सीजन एयर में मौजूद है, जब उस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो दैट ओजोन विल बी कन्वर्टेड, ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओजोन। You may see here that here 3 moles of oxygen are being converted into 2 moles of ozone। और इस conversion के लिए हमें क्या requirement है हमारे लिए? There should be an electric discharge। तो जहाँ कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रही होगी तो वहाँ पर मौजूद जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू दी ओजोन। सो इस वजह से दिस ओजोन कैन बी फेल्ट अराउंड फोटोकॉपियर, टेलीविजन सेट, माइक्रोवेव ओवन और एनी अदर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। सो दीज वर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। हमने आज के टॉपिक में एयर पोल्यूटर्स को स्टडी किया कि वो क्या हैं और उनकी फ़िज़िकल स्टेट्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, उनके अफेक्ट्स क्या हैं। फिर हमने ये स्टडी किया कि एयर पोल्यूशन की डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। सो जब आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, सो कीप इट इन माइंड कि फॉर एवरी पोल्यूटेंट यू फर्स्ट हैव टू राइट द सोर्स कि वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन यू विल राइट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कि वो उनकी अपीयरेंस क्या है, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी ऑर्डर क्या है। इसी तरह देन यू विल राइट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दैट पोल्यूटेंट। If you will look at table 14.1 at page 116 of your textbook, then you will see कि वहाँ पर उस टेबल में बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने तमाम पोल्यूटर्स के प्रॉपर्टीज़, सोर्सेज और अफेक्ट्स जो हैं वो कंपाइल करके लिखती हैं। सो you can memorize these effects, sources and the properties from that table as well. So this was all for today. In our next lecture we will discuss about the global warming, and thank you very much for being with me.